کہ یا تو یہ واقعہ ہوا بھی نہیں، اگر ہوا ہے تو اس میں لڑکی ملوث ہے، لیکن پنجاب کالج اور حکومت اس چھوٹے سے مطالبہ جو جائز مطالبہ ہے اس کے اوپر عمل وہ کیوں نہیں کر رہی؟ جو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس والے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تضاد تو ان کی باتوں میں نظر آ رہا ہے لیکن وہ کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پنجاب کالج میں جو واقعہ پیش آیا لڑکی والا، وہ انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے۔ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں وہ پھیلتا جا رہا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، وہ اب کنٹرول میں طلباء نہیں آ رہے۔ مختلف بڑے شہروں میں کالج کے اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے، کارکن جو طلباء ہیں وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، اور یعنی کہ بہت سارے کالجوں کو اور یعنی کہ مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے اوپر جو نئی اپڈیٹ میرے سامنے ہے، میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا اور کچھ مجبوری تھی، لیکن میں کافی ٹائم اسی خبر کے اوپر لگا رہا ہوں کہ آخر یار وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پورے پاکستان میں پھیل گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناظرین، اس واقعے کے اوپر 3 گروپس واضح موجود ہیں جو بظاہر تو وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن تینوں گروپس میں تھوڑا بہت مجھے سیاست نظر آ رہی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے پنجاب کالج، جس کو پشت پناہی یعنی کہ سپورٹ ہے حکومت کی، ان کا بالکل الگ موقف ہے۔ دوسرا گروپ ہے طلباء کا، طلباء جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتیں، خاص کر جو بڑی سپورٹ کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ اور تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے جو ہم جس کو نیوٹرل سمجھ رہے ہیں، وہ ہے علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس والے۔ وہ بھی اس واقعے کو بڑی باریک بینی سے اس کا یعنی اس کے اوپر نظر رکھ کے اور اس کے اوپر مکمل کام کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں گروپس کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان میں کتنی حقیقت سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس میں سیاست کتنی ہو رہی ہے۔ جو پنجاب کالج ہے یا ان کو جو سپورٹ یعنی کہ حکومت کی سپورٹ ہے، وہ بضد ہیں کہ بھئی ایسا کچھ واقعہ ہوا بھی نہیں، باوجود اس کے کہ کالج انتظامیہ حکومتی لوگوں کے کئی بیانات میں تضاد ہیں، ان تضادات بیان کے باوجود بھی وہ اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں۔ جو طلباء ہیں جن کا مطالبہ ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کا بہت چھوٹا اور بہت جائز مطالبہ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت وہ مطالبہ یا پنجاب کالج وہ مطالبہ ان کا کیوں نہیں مان رہی، حالانکہ وہ معمولی چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ اب جو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سینٹر والے ہیں، سروس والے ہیں، ان کے باتوں میں بھی مجھے کچھ تضاد نظر آیا۔ تضاد آنے کے باوجود بھی وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی نیت کے اوپر اس لیے شک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اب کسی سیاست نہیں کر رہے۔ کیوں کہ نہ ان کا دور پہلے کبھی گزرا ہے حکومت میں، نہ اب وہ حکومت میں ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے یعنی کہ جو طلباء کا مطالبہ اور پی ٹی آئی جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کا مطالبہ جو بظاہر چھوٹا ہے اور حکومت اس کا نہیں مان رہی، اور جو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس والے ہیں ان کا جو مطالبہ ہے، اس مطالبے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تضاد تو ان کی باتوں میں نظر آ رہا ہے لیکن وہ کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ اب ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس کی جانب سے ایک یعنی کہ ایک پیغام جاری کیا گیا آل پاکستان طلباء کو، کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں اس واقعے کے اوپر، پھر یہ سنو، پھر اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کے طلباء، تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ پنجاب کالج ایشو پر علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس کی جانب سے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے۔ یعنی کہ وہ گزارش کر رہے ہیں پورے پاکستان کو کہ جو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس کی جو ٹیم ہے
वो तश्कील दे दी गई है, वो इस वाक़ये को बड़ी बारीक बीनी से देख रही है, जो ठोस सबूत मुख्तलिफ जराए से हासिल कर रही है, और इसके बाद कानूनी कार्रवाई बरोकार लाई जाएगी। और जो भी फैसला हुआ 1 हफ्ते की डेडलाइन पे इंशाल्लाह बताया जाएगा। स्टूडेंट से गुजारिश है कि किसी भी इंतशारी फैसले या किसी जगह मार्च करने के इंतशारी फैसले को सपोर्ट मत करें। कुछ जमातें आपको अपने सियासी कैरियर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यह मुल्क हमारा है, अगर यहां कोई भी गलत काम होता है तो हमने उसको दुरुस्त करना है, ना कि मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। लिहाजा किसी भी इंतशारी पैगाम, तोड़ फोड़, धरना, जलसे वगैरह की तरफ ध्यान मत दें, और अगर सबूत देने में मजीद हमारी मदद कर सकते हैं तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर राब्ता करें। नाज़रीन, बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने बयान दिया है कि भाई हमारी टीम काम कर रही है, ठीक है, अगर कोई काम गलत है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, ना कि इंतशारी टोला, यानी कि जो सियासत हो रही है, जो पहले मैंने कहा है कि तीनों ग्रुप्स में कहीं ना कहीं सियासत नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको कान नहीं धरना चाहिए। अब नाजरीन, इसके ऊपर बात करते हैं कि सियासत किस तरह हो रही है। मैं कुछ काम ऐसे होते हैं कि आदमी को थोड़ा बहुत अपना अक्ल भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं किसी हकीकत तक पहुंच जाता हूं और कर कुछ नहीं सकता हूं, तो कम अज कम मेरे दिल को तो तसल्ली हो जाएगी, नहीं यार असल हकीकत यह है और अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई, मैं पहले उस पॉइंट को आप लोगों के सामने रखता हूं जिसके ऊपर किसी का इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना। मसलन के जो लोग मुतालबा कर रहे हैं या जो तालबा और तालबात हैं और उनकी जो मुतालबात हैं उनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि एक बच्ची से ज्यादती हुई, और ज्यादती किसने की है? एक गार्ड ने की है और एक वैन ड्राइवर था, यानी 2 शख्स थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक ड्राइवर था, और एक फर्स्ट ईयर की तालबा थी, उसके साथ ज्यादती हुई है। अब ये यानी कि मेन इशू है। अब इसके ऊपर किसी भी तरफ से जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका इख्तलाफ नहीं है, कि कोई ये नहीं कहता है कि जी वो फर्स्ट ईयर की नहीं थी, वो सेकंड ईयर की थी, या वो ये नहीं कहते कि जी वो ड्राइवर नहीं था, वो तो यानी कि कोई और कैंटीन का मुलाजिम था, या कोई टीचर था, या कोई स्टूडेंट था, या पूरे कॉलेज का किसी और यानी कि काम करने वाला कोई माली था। नहीं, वो इस चीज के ऊपर उनका अटल फैसला है कि भाई वो कौन था? वो था गार्ड और एक वैन ड्राइवर। इन्होंने ज्यादती की है और इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, ये उनका मुतालबा है। अब नाजरीन, इंतहाई जायज और मामूली और यानी कि सही उनका मुतालबा है, लेकिन पंजाब कॉलेज और हुकूमत इस छोटे से मुतालबा, जो जायज मुतालबा है, इसके ऊपर अमल वो क्यों नहीं कर रही? यानी कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन इसके ऊपर अमल क्यों कर रही? अब सुनो नाजरीन, कि जो मुतालबा कर रहे हैं तुलबा, अब अपने दिमाग से थोड़ा सोचना कि वो नाम किसका मेंशन कर रहे हैं लड़की के साथ, कि एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर। अब खुद बताओ कि एक इतने बड़े अदारे में, एक किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या कोई भी और अदारा है, उस अदारे में एक गार्ड की क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या हैसियत होती है, या एक ड्राइवर की क्या हैसियत होती है, उसको कितनी वहां इज्जत मिलती है, या उसकी कितनी वहां अप्रोच होती है, या वो कितना यानी कि वो उस अदारे में उसका असर रसूख होता है। यानी कि मैं जाती तौर पर बताऊं तो उनको लोग इंसान समझते भी नहीं है, वो मामूली का आदमी समझते हैं, ओए करके उनको बुलाया जाता है। अगर वो ऐसी हरकत उसने की है तो फिर अदारा उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? अब तुलबा जितने भी हैं वो कहते हैं कि भाई उसको गिरफ्तार कर लो और मामला दफा हो जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि भाई यहां अगर कोई मुलव्वस, कोई प्रोफेसर होता, कोई टीचर होता, कोई आला ओहदेदार होता, कोई कॉलेज का यानी कि बड़ा कोई एमडी हो गया, या कोई और ऑफिशियल बड़ा नाम होता, तो ये कहते कि यार ये तो बड़ा नाम है, ये तो कॉलेज की इज्जत का सवाल है। अब एक कॉलेज में एक लड़की के साथ रेप होता है, रेप होना इतनी बड़ी बदनामी नहीं है जितनी बड़ी बदनामी है कि उसको छुपाना, फिर जो लोगों ने रेप किया है उनको सजा न दिलाना, ये बड़ा जुर्म है। और ये कॉलेज की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर ज्यादा असर होता है, क्योंकि जुर्म तो होगा, लाजमी होगा। जहां लड़कियां और लड़के इकट्ठे पढ़ेंगे जुर्म तो जरूर होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि यार ये जुर्म होगा भी नहीं,
होना भी नहीं चाहिए तो वो गलत है, क्योंकि 1400 साल पहले जब सजाएं मुकर्रर की गई कि फलां जुर्म की ये सजा, फलां जुर्म की ये सजा, फलां जुर्म की ये सजा, तो इससे ये बात वाज़ेह है कि जुर्म तो होना ही होना है। हाँ, उसको मिनिमाइज करना है, कम करना है। कम करने के लिए क्या होता है कि सजा दी जाती है। जहां भी कोई आदमी जुर्म करता है उसको फौरन सजा दी जाती है। अब जुर्म करने वाले कौन आ रहे हैं? वो आ रहे हैं कि जी एक गार्ड है और एक स्टूडेंट है और दूसरा एक ड्राइवर है। अब उनके लिए कॉलेज को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इतने मुल्क में हालात खराब हो गए और उनको वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब यहां दूसरा एक सवाल पैदा होता है कि या तो जैसा कि वो कर रहे हैं कॉलेज वाले, इंतजामिया कह रही है कि कुछ वाकया हुआ भी नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किसी ने गलत खबर फेसबुक के ऊपर फैलाई। मैं कई स्टूडेंट की वीडियो देख रहा था, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप उस लड़की को जानते हो, वो कहते हैं हम जानते नहीं है। ठीक है, अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं कि या तो ये वाकया हुआ भी नहीं, अगर हुआ है तो उसमें लड़की मुलविस है, इसलिए उसको यानी कि इसकी तरफ जो कॉलेज है या पंजाब कॉलेज है या हुकूमत उसकी तरफ नहीं जा रही। मिसाल के तौर पर, अब अगर ऐसा कुछ वाकया हुआ भी नहीं तो वो किसको गिरफ्तार करें, किसके खिलाफ एक्शन लें, क्या करें उनके खिलाफ, जब एक चीज हुई भी नहीं है। किसी बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करके वो जेल में डाल दें। अब अगर हुआ है तो एक ड्राइवर या इसको हुकूमत क्यों बचा रही है? या तो अगर उन्होंने वो उस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि हो सकता है लड़की उनके साथ मुलव्वस हो। मेरी बहनें भी हैं माशाल्लाह, मेरी बेटी भी है, मेरी भतीजियां भी हैं, मैं कोई एक अलग मखलूक नहीं हूं। मैं रब गवाह है कि मैं हजारों मिसालें मेरे पास ऐसी मौजूद हैं कि ऐसे वाकये जब पब्लिक हो जाते हैं, जब उनकी तहकीकात होती है तो उसमें वो लड़की खुद शरीक होती है, लेकिन लड़की को एडवांटेज है कि वो कह देती है मेरे साथ रेप हुआ है, तो बस मेरे जैसे हीरो भी हो जाते हैं, जी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मुमकिन है कि हो सकता है वो लड़की इसमें खुद मुलविस हो। अगर लड़की मुलविस नहीं है, वाकया हुआ है, तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड या एक ड्राइवर को गिरफ्तार करने में पंजाब कॉलेज या हुकूमत की क्या जा रहा है? हालांकि मुतालबा भी उनका यही है कि उनको गिरफ्तार कर दो, हम बस खत्म कर दें, क्योंकि अब वो वाकया रिवर्स तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कोई स्टूडेंट की तरफ से अगर ये मुतालबा होता कि भाई एक कॉलेज बंद होना चाहिए, इसके मालिक को सजा होनी चाहिए, अच्छा हम पूरे बाइकाट करते हैं पंजाब कॉलेज की तरफ, ग्रुप पंजाब ऑफ ग्रुप कॉलेज की तरफ से हम पूरा बाइकाट करते हैं, या हम जिस जो पंजाब कॉलेज का मालिक है या इसका जो कोई भी यानी कि अहम ओहदेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने नॉर्मल सादा सा मुतालबा है कि भाई जिसने सजा दी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अब सवाल क्या है, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जो एक वेलफेयर है, एजुकेशनल एंड वेलफेयर सेंटर वाले, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मैं कई वीडियोस देखी हैं, वो वीडियो में भी बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रहे हैं कि हम उस लड़की के साथ खड़े हैं, हम उसको इंसाफ दिलाएंगे। अब वो उन्होंने एक तहरीरी तौर पर यह कहा है कि भाई हम ये सर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये असल वाकया हुआ क्या है, अगर आपके पास भी कोई शवाहिद हैं तो हमको फोन कर गए। तो अब इससे वाज़ेह हो गया कि उनकी बातों में भी तजाद है, लेकिन इनकी बातों में तजाद होने के बावजूद इनमें सियासत नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनका जो मकसद है वो ये मकसद नहीं है कि कॉलेज बंद हो जाए, हुकूमत को ऊपर यानी कि बयानबाजी करके अपना सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए, या जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं तलबा को जो पीटीआई वाले उनकी हमायत नहीं। इनका मकसद यह है कि हम जो शुरू से कहते हैं, हमारा जो मुतालबा है कि लड़की और लड़कों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग अलग होना चाहिए। शायद अगर वो इख्तलाफात होने के बावजूद भी उनकी जो नीयत है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस वाले, उनमें इख्तलाफ होने के बावजूद उनकी नीयत पे शक इसलिए नहीं की जा सकता। उनका जो मुतालबा है वो जेन्युइन मुतालबा है, यानी कि आज तलबा जो मुतालबा कर रहे हैं कि भाई उनको इंसाफ दिया जाए। अगर उसको इंसाफ दिया जाएगा तो जहां लड़की और लड़के कॉलेज में इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या वहां नहीं होगा? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि यार शायद मेरे ऊपर भी फतवा लग जाए कि एक सिक्योरिटी गार्ड की कहां ड्यूटी है, कहां उसकी ड्यूटी होती है। अगर कॉलेज टाइम में तो सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की को अकेला कहां वरगला के लेके जा सकता है, कहां उसने रेप किया है, कौन सी वो जगह थी, कोई नहीं बताएगा। हां अलबत्ता यहां टीचर का नाम होता, यहां किसी प्रोफेसर का नाम होता,
जो अक्सर कॉलेजों में होता है। तो फिर बात समझ भी आती, भाई किसी क्लास रूम में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी चीज को समझाने के लिए एक प्रोफेसर एक कमरे में किसी लड़की के साथ उसको कोई चीज सवाल कर रहा है, कोई चीज मिस कर रहा है, तो उसकी नीयत खराब होगी समझे। तो एक सिक्योरिटी गार्ड को कहां मौका मिल गया कि वो एक लड़की के साथ रेप करे। लड़की उस सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी अक्सर ड्यूटी कहां होती है, उसका एक अलग छोटा सा केबिन होता है, गेट के ऊपर ड्यूटी होती है, या वो स्कूल या कॉलेज या जिस अदारे के अंदर वो विजिट करते रहते हैं, वहां उनका कोई प्रॉपर बराबर रूम या कमरा नहीं होता है। अगर होगा भी तो जब वो उसको कह रहा है लड़की को, अभी उसकी कॉलेज के लॉन में या किसी अंदर तो उसने नहीं, सामने तो नहीं कर लिया ना, किसी मखसूस जगह में उसने किया होगा, तो उस मखसूस जगह में वो लड़की क्या कर रही थी। अगर वो जो एक गॉड वाला एक नौजवान लड़की को बुलाता है कि आप मेरा आपसे काम है, वो उसके साथ क्यों जाती है। तो नाज़रीन सवाल बड़े हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर सियासत हो रही है। ये मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा है और इसको जो पूरा सपोर्ट कर रही है वो पीटीआई कर रही है इन तुलबा को। हालांकि मैं यकीन माने मैं इस चीज से नहीं कर रहा हूं कि पीटीआई या नून लीग या को, मुझे इस वाकये में ज्यादातर सियासत नजर आ रही है। अगर ये वाकया हुआ भी है तो ये वाकये पाकिस्तान में क्या एक वाकया हुआ है, ऐसे दर्जनों हजारों वाकये होते हैं। एक छोटी सी लास्ट मिसाल मैं आपको देता हूं, मैं इस चीज की कह लूं, शायद आप इससे इख्तलाफ करें, कि ऐसे जो जुर्म होते हैं उन जुर्म को पब्लिक नहीं किया जाता है। पब्लिक करने से हल नहीं होता है, पब्लिक करने से मजीद बढ़ते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ज्यादा देता हूं, उसका नुकसान क्या होता है। मैं दुबई में, दुबई एक छोटा सा मुल्क है, अगर पूरे दुनिया की मिसाल देखें तो आज यूरोप से भी ज्यादा लोग तवज्जो दुबई को देते हैं कि जी दुबई कितना अच्छा मुल्क है। वहां यानी कि एक अकेली औरत रात को घूम रही है, आप 2 लाख दिरहम लेके घूमते रहे, आप क्या करते रहे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां कानून सख्त है वगैरह वगैरह, यानी कि उसकी मिसाल दी जाती है। अल्लाह गवाह है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वहां का पुलिस ऑफिसर। उस पुलिस ऑफिसर मेरे साथ इतना अच्छा दोस्त था कि मैं उसके साथ बिल्कुल फ्री था। उसने कुछ वाकई भी मुझे सुनाया। अगर कोई लोग दुबई का रहने वाला है, राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन के बैक कुछ एक एरिया है राष्ट्रीय का, आप लोगों को मालूम है, मैं तफसील में नहीं जाता हूं, उसका एक वाकया सुनाया, एक इंटरनेशनल सिटी का उसने मुझे वाकया सुनाया। मुख्तसरन क्या कि मैंने उससे बार बार एक ही सवाल करता था कि यार मुझे ये बताओ कि क्या दुबई में रेप होता है, चोरी होती है, डाका होता है, किसी की चीज के ऊपर कब्जा होता है, जो जुर्म पाकिस्तान में होते हैं, जो अक्सर हमारा मीडिया सुबह शाम टीवी ऑन करके दिखाता है होता है। वो कहता है मलिक होता है। एक दिन यकीन माने कि वो मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ गया। मैं जब बार बार पूछता था तो वो एकदम मेरे सामने हाथ जोड़ा, मुझे कहता है मलिक भाई, वो एज में मुझसे छोटा था, वो कहता है मलिक भाई हमारे मुल्क में हर वो काम होता है जो तुम्हारे मुल्क में होता है। अगर तुम्हारे मुल्क से ज्यादा नहीं तो कम नहीं होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम पब्लिक नहीं करते, हम डंडोरा नहीं पीटते। जो जुर्म हो जाता है उसके ऊपर हम काम करते हैं और उस शख्स जो मुलविस होता है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। बस हमारा ये काम है, हम उसका ढंडोरा नहीं पीटते, पूरी दुनिया को नहीं दिखाते। उसमें कंट्रोवर्सी बन जाती है, कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है, कोई कहता है सियासत हो रही है, कोई क्या कहता है। लेकिन आज उस मुल्क का जहां एक पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि मलिक हर वो काम होता है जो तुम्हारे मुल्क में होता है, ज्यादा नहीं होता है तो कम भी नहीं होता है, लेकिन उस मुल्क को दुनिया में किस अंदाज से पेश किया जा रहा है और लोग उसको किस तरह देखते हैं कि यार कितना जबरदस्त मुल्क है दुबई। और पाकिस्तान में एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है, इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि यकीन माने कि जब मैं 15 साल बाहर रहा हूं तो जब हम मीडिया टीवी खोलते थे तो खुदा की कसम है पाकिस्तान आने से डर लगता था कि यार ये पाकिस्तान है या जंगल है। लेकिन आज माशाल्लाह 3-4 साल पाकिस्तान कोई प्रभाव भी नहीं है। भाई ये वाकई तो होते हैं, जहां इंसान रहते हैं वहां वाकई तो होते हैं, लेकिन हरगिज मेरी ये बात करने का मकसद नहीं है कि ये वाकया हो गया तो छोड़ दो, नहीं। इसका वैध हल जो है ना वो शरी निजाम है। अगर कोई आदमी कहे कि भाई हम सऊदी में भी ऐसे वाकये होते हैं, सऊदी में यानी कि पूरा शरी निजाम नहीं है, सऊदी में मिसाल दी जाती है कि सऊदी में शरी निजाम है, ठीक है, पूरा शरी निजाम नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक हैंगिंग होती है, सरेआम फांसी होती है, सरेआम सर कलम की जाता है, तो वहां जो जुर्म की आप वो देखें तो वो दूसरे मुल्कों से इंतहाई कम है, क्योंकि वहां सजा होती है। और जहां सजा नहीं होगी
اور سزا اگر آپ پراپر دیں گے تو وہ صرف دیں گے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. یہ موجودہ جو سسٹم ہے اس سے آپ سزا نہیں دے سکتے اور ایسے جرم کو آپ کم نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوچ ہے. ہر کوئی آدمی اپنی طرف سے الگ طریقے سے سوچتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ